بلوچستان میں ہائی جیکنگ کی دنیا کی سب سے بڑی واردات ہوئی ہے، واقعہ ہوا ہے۔ ہماری رجیم کی طرف سے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کی طرف سے دہشت گردی کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دہشت گردی سے کیسے نکلنا ہے، کن کے ساتھ آپ کے رابطے ہونے چاہیے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں جعفر ایکسپریس کی، جس کو ہائی جیک کیا گیا، یرغمال بنایا گیا۔ یرغمال بنانے والوں کی تعداد 150 سے زیادہ ہے، جبکہ یرغمال بننے والوں کی تعداد جن کو پہلے حراست میں لیا گیا تھا وہ 500 سے زیادہ تھے، لیکن 200 کو یرغمال بنایا گیا۔ اس پر ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں، آپ نے اور بھی ویلاگ دیکھے ہوں گے، آپ کو انفارمیشن مل چکی ہوگی، لیکن ہماری حکومت کی طرف سے اس معاملے کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ کسی قسم کا کوئی ایکشن نظر نہیں آتا۔ بہرحال بیان بازی میں ہمارے حکمران شہباز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور دیگر بھی سب سے آگے ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ اب تک تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو جانا چاہیے تھا، APC بلا لینی چاہیے تھی، جتنی اس کی شدت ہے، لیکن کہیں پہ کوئی بھی کان تک جون بھی نہیں رنگی۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ ان کو کتنی زیادہ دلچسپی ہے دہشت گردی کے خاتمے میں۔ دوسری طرف آرمی چیف صاحب، جب سے یہ پتہ چلا ہے، جب سے یہ وقوع سامنے آیا، ایک ٹانگ پر کھڑے ہیں ان کی طرف سے۔ جس طرح سے دہشت گردوں کے ساتھ نمٹنے کی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن جنرل راحیل شریف کے دور میں جیسے ہی ایسی کوئی دہشت گردی کی واردات ہوتی تھی تو اس وقت تک جنرل راحیل شریف چین سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک ایک کے بدلے میں 10 کو دہشت گردوں کو انجام تک نہیں پہنچا لیتے تھے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کی سرگرمیاں اسی طرح سے جاری ہیں، کسی قسم کا کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا۔ جیسا کہ پہلے ہم نے کہا کہ زبانی جمع خرچ جاری ہے، بیانات پہ بیانات آگے جا رہے ہیں، لیکن عملاً کچھ بھی اس حکومت کی طرف سے سامنے نہیں آ رہا۔ تو کیا ایسے دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں عمران خان نے جس طرح سے دہشت گردی کی مذمت کی ہے، انہوں نے جو کچھ اس حوالے سے کہا، جو ہماری رجیم کو مشورہ دیا، اگر عمران خان کی بات مان لی جاتی ہے تو دہشت گردی سے نجات ممکن ہے۔ ملک میں اس وقت دہشت گردی اپنے قدم دوبارہ جما چکی ہے۔ ہمارے دور میں ملک دہشت گردی پر قابو پا کر سیاحت کے فروغ کی جانب گامزن ہو چکا تھا، اور گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں پاکستان کی رینکنگ 4 درجے بہتر ہوئی تھی، لیکن رجیم چینج نے اس سارے عمل کو بھی ریورس گیئر لگا دیا، اور اب بدقسمتی سے ہم گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں دوبارہ دنیا کا دوسرا بدترین ملک بن گئے ہیں۔ اندرونی معاملات کی طرح اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی بہترین طریقے سے چلائی جا رہی ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہماری سرحد بہت لمبی ہے، ان کے ساتھ معاملات بات چیت سے حل ہونے چاہیے۔ جب تک ہمسایہ ممالک کو لے کر ہماری خارجہ پالیسی آزاد اور خود مختار نہیں ہوگی، ملک میں امن نہیں آ سکتا۔ فوجی آپریشن کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتے، بڑی بڑی جنگوں کا حل بھی مذاکرات اور امن و استحکام کی کوشش سے ہی نکلتا ہے۔ خفیہ اداروں کا اصل کام سرحدوں کا تحفظ اور دہشت گردی سے بچاؤ ہے۔ اگر وہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور تحریک انصاف کو توڑنے میں ہی لگے رہیں گے تو سرحدوں کا تحفظ کون کرے گا؟ بلوچستان میں دہشت گردی پنپ رہی ہے اور وہاں کے مسئلے کا کوئی سیاسی حل نہیں نکال رہا۔ بلوچستان سمیت ملک بھر میں جب تک عوامی اعتماد پر مشتمل حکومت نہیں لائی جائے گی، استحکام ممکن نہیں ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ملک بھر میں گورننس کا برا حال ہے، کیونکہ ہر جگہ عوام کے حقیقی نمائندگان کی بجائے فارم 47 والوں کا قبضہ ہے۔ خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جہاں عوامی حکومت موجود ہے، اور عوامی امنگوں کی ترجمانی کے باعث پختونخوا کی کارکردگی تمام صوبوں سے بہتر ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی سالانہ کارکردگی رپورٹ بہترین ہے۔ علی امین گنڈاپور بطور وزیر اعلیٰ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل اس وقت قانون سے بالاتر ہے۔ عمران خان نے مزید اپنے پیغام میں کہا کہ جیل مینول کے برخلاف میری اپنی اہلیہ سے 90 دن میں 72 گھنٹے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، جو کہ میرا بنیادی اور قانونی حق ہے۔ عدالتی احکامات کے باوجود 2 ہفتوں سے میرے بچوں سے بھی بات نہیں کروانے دی جا رہی۔ پچھلے 4 ماہ میں صرف 4 بار بات کروائی گئی ہے، یہاں تک کہ میری کتابیں مجھ تک پہنچنے نہیں دی جاتی۔ یہ سب کچھ بنیادی انسانی حقوق قانون اور جیل مینول کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پاکستان میں اس وقت صرف جس کی لاٹھی اس کی
भैंस का कानून है। इमरान खान की तरफ से ये पैगाम आया और ये भी बावर होना चाहिए कि इमरान खान ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वो नहीं कहते कि मुझे अच्छा सेल दिया जाए, मुझे इलाज दिया जाए। वो अगर बात करते हैं तो किताबों की बात करते हैं। इमरान खान की तरफ से दहशत गर्दी से निजात के लिए जो कुछ कहा गया, क्या हुकूमत उस पर अमल पैरा होगी? तो ये आपके सामने इमरान खान की तजवीज़, उनका मशवरा, उनकी राय रख दी। देखते हैं कि रजीम इस तरफ आती है या फिर नहीं आती। ये क्योंकि इमरान खान ने कहा है इसलिए इन्होंने इस तरफ बिल्कुल भी नहीं आना। इस रजीम की आज इस तरह से सारी की सारी तवज्जो दहशत गर्दी के खिलाफ, दहशत गर्दी की तरफ होनी चाहिए थी। उधर नहीं है, बल्कि इमरान खान को प्रेस करने के लिए, उनकी पार्टी को बेनाम करने के लिए इमरान खान पर धड़ाधड़ मुकदमा इंतकामी कार्रवाइयां सामने आ रही हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। एक और जेंट्री बीच पाकिस्तान में आ गया। कहा जा रहा है कि हांगकांग के सरमायाकारों की तरफ से पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। IMF से भी कर्जे लिए जा रहे हैं और $1 अरब मजीद इनको मिल गया है। जेंट्री बीच भी पाकिस्तान आया था, उसकी तरफ से ऐलान किया गया और उस ऐलान को इन्होंने जिस तरह से ऊपर उठाया, धूल की तरह, तूफान की तरह, कहने लगे कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में ये सरमायाकार लेके आ रहा है। वो ड्रामेबाजी थी। इसी तरह से शहबाज हुकूमत की तरफ से नई ड्रामेबाजी हांगकांग के हवाले से भी सामने आ गई है कि $1 अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी। बहरहाल ड्रामों पर हुकूमत चल रही है, तो देखते हैं कितनी देर तक चलती रहेगी। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक और चीफ के सामने झुक के सलाम किया गया है और निश बजा लाए हैं शहबाज शरीफ साहब। 190 मिलियन पाउंड के हवाले से शहबाज शरीफ की तरफ से बहुत ही बड़ा बयान सामने आया और उसके साथ ही कोर्निश की गई है चीफ की। किस चीफ की? पहले तो किसी और चीफ की वो कोर्निश करते चले आ रहे हैं। अब उन्होंने चीफ जैसे पाकिस्तान याह्या अफरीदी की खुशामद की है, कोर्निश की है, आदाब बजा लाए हैं। कहा गया है कि आपने 190 मिलियन पाउंड हमें दे दिए, हमारी जेब में डाल दिए, उस पर हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। ये पैसे पड़े हुए थे, इमरान खान का जिसमें नाम आता है, ये पैसे पड़े हुए थे सुप्रीम कोर्ट के बैंक अकाउंट में। और याह्या अफरीदी साहब की तरफ से शायद काजी फाइज साहब इस हवाले से कोई थोड़ा सा काम कर गए थे, पेशरफ कर गए थे, तो याह्या अफरीदी की तरफ से ये पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हुकूमत के अकाउंट में, शहबाज शरीफ की जेब में 190 मिलियन पाउंड। तो इस पर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया है 190 मिलियन पाउंड हुकूमती अकाउंट में मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस के शुक्रगुजार हैं। इसकी दानिश यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इसके साथ साथ उनकी तरफ से कहा गया कि कोई नाजायज मुनाफाखोर बच सके, ना किसी बेगुनाह को जेर अताब लाया जाए। तो महंगाई के हवाले से शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ उनकी तरफ से मजीद भी 190 मिलियन पाउंड के बारे में कहा गया। 190 मिलियन पाउंड सारे का सारा तालीम पर खर्च होगा। दानिश यूनिवर्सिटी ऐसी दरसगाह होगी जहाँ मुस्तहिक और लायक तलबा को आला तालीम से आरास्ता करने के साथ तालीम याफ्ता फैकल्टी भर्ती की जाएगी। ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। और इसके साथ साथ इनकी तरफ से आज तक ये वावेला किया जा रहा था कि इमरान खान 190 मिलियन पाउंड खा गया। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से बाकायदा कहा गया था कि अगर ये पैसा पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए इस्तेमाल होता तो पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच जाता। बिल्कुल यही अल्फाज मियां नवाज शरीफ साहब के थे। हालांकि इमरान खान के अकाउंट में इमरान खान ने इसमें से एक पैसा भी, जैसे शहबाज शरीफ साहब थैली की बात करते हैं, एक थैला भी अपनी जात पर खर्च नहीं किया था। लेकिन इन लोगों की तरफ से ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया, ऐसा झूठ बोला गया जो उसी वक्त पकड़ा जा चुका था। उधर नासिर इकबाल को देख ले, उन्होंने भी झूठ खाने की कसम खाई हुई है। ये उनको बड़ा पढ़ा लिखा कहते हैं, प्रोफेसर अपने आप को कहलवाते हैं, डॉक्टर नहीं कहलवाते क्योंकि PhD नहीं कर सके थे। बहरहाल उन्होंने भी किसी तरह से इतनी तालीम हासिल कर ली कि प्रोफेसर बन गए, लेकिन जहालत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जिस तरह से वो आला तालीम हासिल करने से पहले जाहिल थे, बिल्कुल उसी तरह से आज भी जाहिल हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जिस तरह से खिताब किया, इमरान खान को तालिबान कहा, बुनियाद परस्त कहा, तो वहां पे बैठ के इमरान खान को तालिबान कहते हैं। पाकिस्तान में होते हैं तो इमरान खान को कहते हैं कि ये यहूदियों का एजेंट है। पाकिस्तानी लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए उनको कुछ और बयान करते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं तो कोई और बात करते हैं। वहाँ पे एक और झूठ इनकी तरफ से बोला गया कि मेरे पेट में भी आज गोली मौजूद है। हो सकता है कि उनके पेट में गोली मौजूद हो, लेकिन वो गोली किसने मारी थी, वो इस वजह से किसी बंदे ने गोली मारी। उसने कहा कि ये हुकूमत, ये हुक्मरान, ये आइन में तरमीम कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से।
تو उस वजह से उस बंदे ने इनको शूट करने की कोशिश की थी, जिसकी किसी तौर भी हमायत नहीं की जा सकती। लेकिन इन्होंने कहा कि ये मेरे पेट में जो गोली है, मुझ पर जो हमला किया गया था, ये भी इमरान खान के हामियों का किया धरा था। इमरान खान की तालीमात की वजह से ये सारा कुछ हुआ था, इमरान खान को फॉलो करने की वजह से ये सारा कुछ हुआ था। तो हसन इकबाल की तरफ से ऐसे, और उन्होंने ही वहाँ 190 मिलियन पाउंड की बात करते करते इमरान खान के हक में वो बात कर गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बैंकों में पैसा आया था। उन्होंने इमरान खान के हवाले से नहीं कहा कि इमरान खान ने उसमें से 1 रुपया भी इस्तेमाल किया है, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ऐसा कहते चले आ रहे हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ का जिक्र हो रहा था, उन्होंने 190 मिलियन पाउंड की बात की और उन्होंने याह्या अफरीदी का शुक्रिया अदा किया। देखते हैं ये पैसे अब हुकूमती अकाउंट में आया है तो किस किस की जेब में जाते हैं, किसके पेट में जाते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब फिर उनके पेट से कैसे पैसे निकालते हैं और अपने पेट से कैसे निकालेंगे। चलते चलते ज़ेलेंस्की की माफ़ी पर भी बात कर लेते हैं। ये बंदा व्हाइट हाउस गया, ओवल ऑफिस गया, वहाँ पे बैठ के इसने जिस तरह का रवैया इख्तियार किया, जिस तरह के सदर ट्रंप के साथ इनकी गुफ्तगू हुई, जिस तरह से वहाँ बड़े चढ़ चढ़ कर बोल रहे थे। उन्होंने एक ट्वीट में भी ट्रंप से माफ़ी मांगी थी और अब बाकायदा ख़त लिख दिया गया है। विक्टोफ की तरफ से कहा गया है, जो मशरिक़ वस्ता में सदर के खसूसी नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा कि उनका ख़त आ गया है, ट्रंप से माफ़ी मांग रहे हैं। और उसके साथ साथ ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन की तरफ से पहले ये कहा गया था कि आपको, ज़ेलेंस्की को उन्होंने कहा था, खबरदार किया था कि आपको होश में आना पड़ेगा। साथ उन्होंने ये भी कहा था कि शुक्रगुजारी के साथ आपको मुज़ाकरात की टेबल पर भी आना पड़ेगा, होश में आना पड़ेगा और मुज़ाकरात की टेबल पर आपको शुक्रगुजारी के साथ आना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर आपकी जगह कोई और मुज़ाकरात के लिए टेबल पर बैठेगा। जैसे ही ये मामला सामने आया तो ज़ेलेंस्की की तरफ से ख़त लिख दिया गया ट्रंप से माफ़ी का। तो इस पर यही कहा जा सकता है कि अगर इन्नी जोगी निसी तो फिर लड़ी क्यों सी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।